So I'm thankful to Gujarat Council of Science City, which is under Department of Science and Technology, Government of Gujarat, to have given me this opportunity to talk to you on Vikram Sarabhai, the father of India's space program. And he, as you all know, that he was born on 12th August 1919 and left us on 30th December 1971. And I joined Physical Research Laboratory in November of 1970. So I had an overlap of about a year or little more. And at that point of time, Sarabhai was director of PRL. He was also chairman of Atomic Energy Commission and director or the chairman of many other systems or scientific organizations that were there in India. So he used to come to PRL only on Saturdays and Sundays. So with that, you can sort of feel that my interaction or my time of seeing him was very, very limited. But I do remember that there were occasions when I saw him from very close distance, and also on few occasions I also talked to him very briefly. So I still have very pleasant memory of all those. But there are several colleagues of mine like Professor R.G. Rastogi, Professor Satya Prakash, Professor Harish Chandra, and Professor S.P. Gupta, who were working in PRL, and I had a very long association with them. And they had interacted, talked to Vikram Bhai, and so through them I learned many things, many stories about him, and some of these I will try to share with you today. And what I thought of sharing with you, the title of this talk I sort of modified little and made it Vikram and Space Science in India Today. And at the outset, I would like to say that Vikram Bhai had dreams of progressive India, developed India, and he also knew how to realize these dreams. So he started this process, and he was a creator of institutes, also nurtured many institutes in India, and it is really unfortunate that he did not live much longer, expired at a very relatively early age. Otherwise, he would have made many more vibrant institutions in India, and our scientific position or the development of our country would have been definitely much more than what we have today. And his nature was very simple living person, and spoke very softly. And in decision making, he was very fast and also apt of taking correct decisions. So I had seen him taking one or two decisions during that short span of time that I had, and they were very fast. Within minutes, he will listen the problem, understand, and give the solution that do this. As a person, he was physicist by education and became astronomer while doing his research in cosmic rays. He developed a space research program from the basics of it. He started, in fact, at his home, a small space science laboratory, which then later moved to MG Science Institute, and then later, with the help of educational societies in Ahmedabad and also the government support, he created Physical Research Laboratory, where to start with, there was a cosmic ray laboratory, cosmic ray studies, and there were atmospheric and ionospheric studies. And these atmospheric and ionospheric studies were headed by Professor K.R. Ramanathan. And later, many more
very brilliant scientists were added to physical research laboratory, and I will talk about PR a little bit, and there I will give you detail what it has really become today. And for his excellent contribution to the nation's development, he was given Padma Bhushan in 1966, and immediately after his expiry, he was given Padma Vibhushan posthumously in 1972. So this is in brief, but we will begin today's discussion by quoting very famous quotations by him. That was to start the space program in India. There were some who questions the relevance of space activities in developing nation, and he said to us, there is no ambiguity of purpose. हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना हमारा उद्देश्य है. We do not have the fantasy of competing with economically advanced nations in the exploration of moon and the planets and manned space flight, because some कुछ जो बड़े कंट्रीज थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, लाइक यूएसए और रशिया, वो उस समय पे मून पे जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, और मैन मिशन के भी शुरुआत उस समय पे हो गई थी, और एक दो प्लेनेट पे लाइक वीनस पे भी जाने के उनके प्लान उस समय पे बने हुए थे. ही सर हमें अभी उनकी कुछ नहीं करना है, हमें तो स्पेस रिसर्च शुरू करना है. बट देन ही सेड वी आर कन्विंस्ड दैट if we are to play a meaningful role nationally and in the community of nations, मतलब हमें अपने देश में और विदेशों के समूह में यदि हमें एक अच्छा मीनिंगफुल उत्तरदायित्व निभाना है, then we must be second to none. That means we should be on our own using the application of advanced technologies to solve real problem of the man and society. तो इस तरह के उनके विचार थे, और ये जब उन्होंने बहुत विगरसली देश में बताए, दिखाए, सुनाए, लोगों को बताया इसके विषय में, तो फिर then government was convinced to support his space science program. And आज तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग एजुकेशन में स्पेस रिसर्च यूज करते हैं, और अभी तो ये पैंडेमिक के टाइम पे तो इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है. हमारे कंफर्ट्स के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज हम घर बैठे अपनी ज़रूरत की चीज़ें बुला सकते हैं, मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. और इन्फॉर्मेशन तो खैर आज कहीं भी बैठे हुए आप किसी भी जगह का, किसी भी देश का और किसी भी तरह की सूचना, सारी चीज़ें आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं. ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हुआ है. और हम कम्युनिकेशन का तो खैर कोई सवाल ही नहीं कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इन इंडिया uses this communication technology which has come through this space research and has become so affordable by very common people. तो ये करके अब मैं आज जो स्पेस डिपार्टमेंट है जिसकी शुरुआत विक्रम भाई ने करी थी, आज उसका कितना बड़ा रूप हमारे देश में है वो बताने का प्रयास करूँगा. इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है, जो एट प्रेजेंट नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और उनके अंडर में एक स्पेस कमीशन है जिसको वो चेयर करते हैं, और कई उसके विद्वान लोग मेंबर होते हैं. और फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसका एक चेयरमैन होता है, और वो ही इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट स्पेस and reports to Prime Minister on the activities of the whole department. इस डिपार्टमेंट में ये जो इधर लेफ्ट साइड पे बताए गए हैं ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये ऐसी यूनिट्स हैं, ऐसे सेंटर हैं जहाँ रिसर्च होती है. ये ऑटोनोमस है, जिनमें सबसे पहला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL है,
और इसको क्योंकि स्पेस साइंस के जो इनिशियल प्रोग्राम्स हैं वो पीआरएल से ही शुरू हुए थे, पीआरएल के वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा शुरू हुए थे, तो इसलिए पीआरएल को जैसे विक्रम भाई को फादर ऑफ स्पेस साइंस कहा जाता है और पीआरएल को मदर ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया बोला जाता है। और दूसरे एनआरएल जो तिरुपति में है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और सिमिलरली इस डिपार्टमेंट के दूसरे बड़े मेजर सेंटर जैसे त्रिवेंद्रम में है, बेंगलोर में है, और ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फिर से अहमदाबाद में है, ये हैदराबाद में है, और बहुत सारे इनफैक्ट इसके सैटेलाइट सेंटर्स आजकल हर स्टेट में भी अलग अलग स्पेस साइंस के डिपार्टमेंट बने। बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट अभी बन गया है और वो एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया हो रही है। इसकी शुरुआती जो काम है, जो सबसे पहले जिसको हम ऐसे तो ग्राउंड बेस्ड स्पेस रिसर्च तो साराभाई ने 1947 में पीआरएल की स्थापना करने के समय पे शुरू कर दी थी, पर ग्राउंड बेस्ड स्पेस रिसर्च और स्पेस रिसर्च ये दोनों में रिलेशन तो है, पर दोनों काफ़ी अलग भी हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो रियल स्पेस रिसर्च का शुरुआत हुआ वो नवंबर 21 को हुआ इन 1963, जिसमें तुम्बा एक स्थान है, मैं उसके विषय में आप चर्चा अगली स्लाइड में करूंगा कि वहाँ से क्यों ये किया गया था। तो वहाँ से सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट भेजा गया था जिसके द्वारा मीटियोलॉजी का अध्ययन किया, एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया, और फिर उसके बाद से तो ये जो तुम्बा का इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने ही नहीं इस्तेमाल किया, बाकी विदेशों के भी, चूँकि इसकी जो स्थिति है, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही यूनिक है, जिसको विक्रम भाई ने तब महत्व दिया था और उसको समझा था, और इसीलिए उसकी वहाँ पे स्थापना करी थी। और उसके बाद 2 वर्ष बाद इन 1965 तुम्बा में ही स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बन गया। इनफैक्ट ये इनिशियल प्रोग्राम तो एक चर्च से शुरू हुआ था, एंड देन बड़ा बिल्डिंग बना, और आज तो खैर वो इसरो की यूनिट्स में सबसे बड़ा सेंटर त्रिवेंद्रम में ही है, तुम्बा जिसके को कहते हैं। और फिर उसके 2 वर्ष बाद सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना हुई अहमदाबाद में, जो आज भी काम करता है, उस पर रिसर्च किया जाता है। और फिर 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय पे ये जो बना था, बिकॉज साराभाई उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, तो उसी के अंडर में ये बनाया गया था। जब वो और ही मैनेज्ड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, ऑल दीज very big organizations almost single-handedly for several years. But after his departure, when he was no more, then the Department of Space was set up on 1st June 1972, and then ISRO was brought under that Department of Space, and this was headed by Professor Satish Dhawan, a very noble person, and he made very huge progress in the space programs of India. And then as a mark of big beginning for space education or space related work, एक सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन जिसको साइट के नाम से जाना जाता था, ऐसा एक प्रोग्राम जिसकी प्लानिंग साराभाई ने की थी, वो 1975 में हुआ, जिसकी मैं चर्चा और थोड़े बाद में उसकी और थोड़ा डिटेल में चर्चा आप लोगों से करने का प्रयास करूंगा। अभी हम पहले तुम्बा का जो लॉन्च साइट है वो कैसे बनी उस पर चर्चा करते हैं। तो ये यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं, ये इसमें देखिए ये भारत है, यहाँ सॉरी ये भारत है यहाँ पे, और
ये जो और ये लाइट जो राइट साइड पे है वो लैटिट्यूड दिखते हैं, जो -15 डिग्री, 0 डिग्री, +15, 30, 45, 60, 70, और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये लॉन्जिट्यूड है। तो अपना भारत जो है वो यहाँ पे स्थित है, और भारत का जो सबसे दक्षिण वाला भाग है जहाँ त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम या थुम्बा लोकेटेड है, उसको आप देखेंगे वो यहाँ पे सबसे टिप पे है, जिसके दोनों तरफ लगभग समुद्र है, और पृथ्वी में एक चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी में एक बड़ा चुंबक के इक्विवेलेंट व्यवस्था है, जिसका एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, जिसकी एक्सेस हमारी जो ज्योग्राफिक एक्सिस है उससे थोड़ी अलग है। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र, और वो लगभग डाइपोल फील्ड जैसा बनता है, द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र जैसा पृथ्वी का है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन सूर्य के कारण आते हैं, और कुछ परिवर्तन हमारे अपने एनोस्फीयर ऊपर मंडल के कारण भी आते हैं। बट यदि उनको हम ज़्यादा ध्यान ना दें और उसकी ग्रोथ फीचर के हिसाब से देखें तो ये एक तरह का डाइपोल फील्ड है, और उस डाइपोल फील्ड में हम उसका इंक्लिनेशन मेजर करें तो एक क्षेत्र यहाँ पे बनता है जो ये हमारी इक्वेटर जिसको कहते हैं ना, भूमध्य रेखा के आसपास, नॉट एग्जैक्टली ऑन भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं, बट उससे थोड़ा सा हट करके वहाँ पे यदि हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इंक्लिनेशन 0 होता है। तो थुम्बा का जो लोकेशन है वो उसी तरह का है, इसमें दोनों तरफ समुद्र है और एक अच्छा रीजनेबल सिटी है जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, भूचुंबकीय क्षेत्र की जो इक्वेटर है उस पर इस लगभग स्थित है। इसीलिए यहाँ से जो रॉकेट साउंडिंग का प्रोग्राम तब चलाया गया और आज भी चलता है, वो बहुत सारी मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए काम में आता है, एटमॉस्फेरिक एंड अपर एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के काम में आता है, और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से एक्सरे एमिशन की अध्ययन करने के भी काम में आता है, और किया भी गया है। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वहाँ पे सबसे पहले ये स्पेस की संभावनाएं एक्सप्लोर की गई थी। अब हम लोग थोड़ा सा वो साइट के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि वो कैसे शुरू हुआ। जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो साराभाई ने प्रारंभ किया था, हालांकि उसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ उस समय पे वो हमारे बीच नहीं थे। तो इसका जो मूल यदि हम लोग खोज करने का देखें तो उसका सबसे पहला तो इनका वियना में, ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी कि जो हमारा आउटर स्पेस है उसको पीसफुली उपयोग करें, उस पे साराभाई ने बहुत अच्छा एक भाषण दिया था, और उससे ये निष्कर्ष निकला था कि सभी देशों को, डेवलपिंग और डेवलप्ड और इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम आउटर स्पेस का उपयोग करें, और आउटर स्पेस के उपयोग से हमारी जो सबकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी। ये निष्कर्ष उनका निकला। उसके पश्चात अगले ही वर्ष साराभाई ने नासा के साथ इंडिया के बिहाफ पे डिस्कशन किए, और एक इंडिया और नासा के बीच में एग्रीमेंट साइन किया, जिसके दो पहलू थे। एक पहलू था कि अमेरिका का एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो पृथ्वी के करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, और वो हमें पृथ्वी से लगभग स्थिर दिखाई पड़ता है, वो तब उनके पास था। और उसका ये था कि ये सैटेलाइट कुछ दिन अमेरिका के पास रहेगा और फिर इसको मूव करके भारत के ऊपर भेज दिया जाएगा, और 1 वर्ष तक भारत के ऊपर रहेगा। और उस समय पर भारत इसमें वो साइट का एक्सपेरिमेंट कि हम किस तरह से अपने ऐसे गांव जहां पर बिजली भी नहीं है, किसी तरह की भी सुविधा नहीं है, बड़े शहरों से कनेक्टेड भी नहीं है, वहाँ तक भी शिक्षा को, वहाँ के सूचनाओं को किस प्रकार से पहुँचा सकते हैं,
ऐसा उन्होंने एक ये प्रोग्राम बनाया था, जो इसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो, जैसे मैंने बताया, वो नहीं रहे थे, क्योंकि ये सैटेलाइट भारत के ऊपर 1975 में आया और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई वो 1 अगस्त 1975 को हुई थी। उस समय पर जो इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का भार था वो प्रोफेसर यशपाल और प्रोफेसर चिटनिस नाम के 2 बड़े वैज्ञानिकों ने उसका कार्यभार संभाला, और बहुत बड़ी टीम इसरो की उनके साथ काम की, वेरी एबल इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था। और इसके लिए भारत की 6 स्टेट्स में, जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के करीब 2400 विलेजेस में क्लस्टर्स बनाए गए थे, टेलीविजन रिकॉर्डिंग के सिस्टम रखे गए थे, जहां पर एक एक जगह पर 100-200 लोगों तक ने उन प्रोग्रामों को देखा, सुना, और इसी के माध्यम से ये विलेजा खेड़ा जो गांव है, खेड़ा का जो एक कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट था, उसको भी इससे जोड़ा गया था। ये प्रोग्राम 4 भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाता था, और इससे 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग भी दिया गया था, और ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम इसरो का रहा, जिसका शुरुआत विक्रम भाई ने की थी। इसी जो 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 सैटेलाइट था ATS-6, इसका एक दूसरा पहलू भी था कि इसमें रेडियो बीकन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए सुविधा भी इसमें प्राप्त थी, जो 40, 140 और 360 मेगाहर्ट्ज पे की जा सकती थी। और इसके लिए भी इसी के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा रिसीविंग तंत्र भी साथ में आया था, जिसको उटाकमंड या ऊटी एक स्थान है दक्षिण भारत में, नीलगिरी पर्वत के ऊपर, वहाँ पर उसको टाटा इंस्टीट्यूट की वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, उसके पास में इसको इंस्टॉल किया गया था। और इसमें एक तो सैटेलाइट के ये 3 फ्रीक्वेंसीज पे इंटेंसिटी के सिग्नल रिकॉर्ड किए गए थे, फैराडे रोटेशन रिकॉर्ड किया गया था, और ग्रुप डिले भी मेजर किया गया था। तो उनके अध्ययन से 3 बातों का बहुत अच्छा, बहुत ही सफल अनुसंधान भी हुआ। एक तो कि रेडियो वेव्स का हमारे आयन मंडल पे, हमारे अपने आयन मंडल पे क्या प्रभाव, किस तरह का प्रभाव आता है, और उसका वो काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला, और मैं उस समय पे रिसर्च कर रहा था। मेरा PhD थीसिस उस प्रोग्राम पे हुआ, और उसी के साथ साथ इसने ये भी मेजर किया कि ऊटी से लेकर के सैटेलाइट के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन जो सैटेलाइट और रेडियो के सिग्नल आए उनको किस प्रकार से डिले करते हैं, क्या से करते हैं, वो अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। तो इसी अध्ययन का विशेष करके सिंथलेशन अध्ययन का जो काम वहाँ पे ऊटी पे हम लोगों ने किया था, तो उसका जो डायरेक्ट एक एप्लीकेशन बना कि उन्हीं दिनों इन अर्ली 80s प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, जो टाटा इंस्टीट्यूट के एक बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं, अभी भी हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया कि भारत में एक जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप बनाया जाए, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मीटर वेवलेंथ का रेडियो टेलीस्कोप आज भी है, और बहुत बहुत सारे अनुसंधान इसके द्वारा किए जा रहे हैं। और जब इसकी स्थापना करनी थी, उस समय पर एक इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम ने 3 स्थान इसके लिए निर्धारित किए थे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा स्थान बेंगलोर था, दूसरे नंबर पर पूना, और तीसरे नंबर पर इंदौर के पास में ये टेलीस्कोप बने, ऐसा था। तो इसके लिए प्रोफेसर गोविंद स्वरूप ने एक वर्कशॉप बुलाई, साइट सिलेक्शन वर्कशॉप, जिसमें मुझे भी बोलने का अवसर दिया गया था, और मैंने मेरे ये एनोस्फेरिक सिंथलेशन के जो ATS-6 से अध्ययन किए थे, उनके अध्ययनों के हिसाब से उनको क्लियरली बताया था कि बेंगलोर एनोस्फेरिक सिंथलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खराब स्थान रहेगा,
इससे हमारा जो इतना बड़ा ये तंत्र बन रहा है, बनने वाला है, इसकी उपयोगिता बहुत घट जाएगी। और पूना विल बी रिलेटिवली बेटर, मच बेटर, एंड इंदौर तो और भी अच्छा होगा। परंतु इंदौर दूसरे कई कारणों से उतना अच्छा नहीं था, रेडियो नॉइज के पॉइंट ऑफ से स्पेशली, तो इसलिए इंदौर नहीं सेलेक्ट किया गया था। और पूना को मैं ये सेंटर बना हुआ है, उसके कुछ टेलीस्कोप आप यहाँ देख सकते हैं, राइट साइड में जो चित्र देख रहे हैं, ये एक एक टेलीस्कोप 45 मीटर की डिश है, मैश डिश है, पैराबोलिक डिश है, और ऐसी 30 डिशेस वहाँ पे लगाई गई हैं, जिनका लोकेशन यहाँ दिखाया गया है लेफ्ट साइड पे। और ये लगभग वाई की शेप में इनका डिप्लॉयमेंट किया गया, और सेंटर में बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड डिशेस लगाई गई, 30 डिश है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, जिसने बहुत सारे अध्ययन पल्सार्स के और गैलेक्सीज के और यूनिवर्स के बहुत सारे अध्ययन ये कर रहा है। अब हम लोग फिर से इसरो की अपनी गतिविधियों पर थोड़ा और चर्चा करेंगे कि जैसा शुरू में 60s में तो भारत से केवल वो रॉकेट्स छोड़े जाते थे। पहले तो रॉकेट भी बाहर से आते थे, फिर इन रॉकेट्स को बनाने का के भी तंत्र तुम्बा में बने, और इसको अपने आप रॉकेट भी बनाने लगा, और वो सब होते थे। इसी बीच में ये भी स्पेस डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने सैटेलाइट भी बनाएंगे। तो सबसे पहला आर्यभट्टा नाम का सैटेलाइट बनाया था, और उस समय पे हमारे पास लॉन्च स्टेशन नहीं थे, लॉन्च करने की फैसिलिटी नहीं थी, और इतने बड़े रॉकेट भी नहीं थे कि हम सैटेलाइट उनके द्वारा लॉन्च कर सकें। तो 19 अप्रैल को 1975 में आर्यभट्टा नाम का सैटेलाइट छोड़ा गया था, जिससे कई प्रकार के साइंटिफिक अध्ययन किए गए थे। केरल के और दूसरे 2-3 डिपार्टमेंट्स के साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे। और फिर उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया। फिर SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी मैं चर्चा थोड़ा और आगे करूँगा, कि वो भी भारत डेवलप करने लगा, और उसके द्वारा रोहिणी सैटेलाइट ये भारत से छोड़ा गया। ये भी बड़ा एक माइलस्टोन 1980 में भारत का अपना था। और उसी दौरान सैटेलाइट बनाने का जो हम लोगों का विधान है वो और भी डेवलप हो गया, और भारत ने अपने यहाँ पे एप्पल नाम का एक जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट बनाया, जिसका लॉन्चिंग इंडिया से नहीं हुआ, बट ये बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, एंड काफ़ी समय तक इसने काम किया। अब हम लोग थोड़ी चर्चा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पे करते हैं। तो कोई भी सैटेलाइट जब हम छोड़ते हैं, उसको एक बार वो अपने ऑर्बिट में चला जाता है, तो वहाँ तो चूँकि ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण उस पर एक बाहर के लिए फोर्स लगती है, और पृथ्वी का गुरुत्व जो उसको खींचने का प्रयास करता है। और जब ये दोनों बैलेंस रहते हैं, तो उस समय पे वो सैटेलाइट उसी जगह पे घूमता रहता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, जैसा चंद्रमा कर ही रहा है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। पर उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें लॉन्च व्हीकल्स की, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत महत्वपूर्ण, इस टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है। और एक बार सैटेलाइट ऊपर चला जाता तो उसको मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे थ्रस्टर तो रखे जाते हैं ताकि उसका ऑर्बिट रहे, बट उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर सोलर एनर्जी द्वारा पूरी की जाती है, और वो अपने आप वर्षों तक, किस तरह का पेलोड है उसमें, किस तरह के सिस्टम बनाए गए, वर्षों तक निरंतर काम करता रहता है और अध्ययन करता है, एप्लीकेशंस करता है। पर इनके लिए जो छोड़ने के लिए, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो लॉन्च व्हीकल चाहिए, उनको कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया ने जो सबसे पहले लॉन्च व्हीकल बनाए थे, उसमें जो उसका थर्ड वर्जन था, पहले 1-2 तो फेल हो गए थे, थर्ड वर्जन वॉज सक्सेसफुल, जिसकी हाइट 22 मीटर से ज़्यादा थी, और वो 17 टन का वेट लेकर के उड़ता था, जिसमें सैटेलाइट का जो मास है, सैटेलाइट की मात्रा ओनली 40 किलोग्राम की होगी।
तो वो 40 ग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा देगा। और ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं ये भी मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी यही मानते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट को पहुंचा देगा, ऐसा है। फिर उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किए इसरो ने, और उनकी जो क्षमता थी, पेलोड क्षमता, वो 150 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकते थे। अर्थात 150 किलोग्राम मास वाला सैटेलाइट वो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया जा सकता था। इसके पश्चात फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का बनाने का कार्य शुरू हुआ त्रिवेंद्रम में। और ये सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये भारत का तो सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल है ही, बल्कि पूरे विश्व में इसने अपनी ऐसी छवि उत्पन्न करी है कि ये सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल माना जाता है। और इसीलिए भारत ने जो सैटेलाइट छोड़े अपने कमर्शियल यूज़ के, अपने रिसर्च यूज़ के, और उसके साथ साथ बहुत विदेशी जो सैटेलाइट भारत ने छोड़े, वो ज़्यादातर ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा छोड़े गए। और इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा, इसकी चर्चा और थोड़ा आगे करेंगे हम लोग। और इसी PSLV के द्वारा चंद्रयान को पहुंचाया गया था चंद्रमा का ऑर्बिट करने के लिए, जिसने वहां जाकर के चंद्रमा पे पानी की खोज करी। और बहुत सारे दूसरे, जो सबसे बड़ा खोज उसका वो पानी की खोज का काम सबसे बड़ा था, और दूसरे भी कई साइंटिफिक उपलब्धियां उसने कराई। और इसी प्रकार से इसी लॉन्च व्हीकल के द्वारा इवन जो मार्स का मिशन है, मिशन टू मार्स, वो भी PSLV के द्वारा ही छोड़ा गया था, जो बाहर के ऑर्बिट में भी जा पाया, ट्रांसफर ऑर्बिट में जा करके फिर सैटेलाइट, वो जो मार्स का मिशन था, वो धीरे धीरे करके मार्स तक पहुंच पाया। ये एक बहुत बड़ा, और पहले ही प्रयास में ये पहुंचा, वो और भी बड़ी, भारत ही एक ऐसा देश है जिसका पहले ही प्रयास में ये मिशन पूर्णतया सक्सेसफुल हुआ, और आज भी काम कर रहा है। उसकी अवधि तो कम थी, पर वो अपनी अवधि से और ज़्यादा काम कर रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है। और जो सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल का निर्माण वो भी अभी भारत में होने लगा है। ये बहुत बड़े सैटेलाइट्स को लेके जा सकता है। इसको कहते हैं GSLV, और जी जो वर्ड है ये जियो सिंक्रोनस का शॉर्ट फॉर्म है, वो रखा गया है, क्योंकि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचा सकता है। और वो भी बहुत ज़्यादा मास वाले 4000 किलोग्राम तक के मास वाले पेलोड्स को, जो इसका पहला मार्क 2 था, वो 2200 किलोग्राम के मास वाले पेलोड को लेकर जा सकता था जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक। और जो अभी मार्क 3 बना है, जिसके द्वारा चंद्रयान 2 छोड़ा गया, वो 4000 किलोग्राम तक के मास को सिंक्रोनस ऑर्बिट में लेकर के जा सकता है। और ये इसमें ये कैपेबिलिटी भी है कि ये ट्रांसफर ऑर्बिट में लेकर के इसको बाहर जाने के लिए, जैसे मून पे या मार्स पे या वीनस, दूसरी जगहों पे जाने की क्षमता भी प्रदान करा देता है। अब हम लोग थोड़ी चर्चा, ये जो मैंने कई शब्द आपको पहले बोले, लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उन पर चर्चा करते हैं। ये जो चित्र है, इसके सेंटर में हमारी पृथ्वी दिखाई गई है, और उसके चारों तरफ ये सर्किल बने हुए हैं। और इस सर्किल के जो ये वर्टिकल एक्सिस है, इस पर टाइम लिखा हुआ है, 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स। तो जो सैटेलाइट इतने ऊपर छोड़ दिए जाएं और वो अर्थ का ऑर्बिटिंग करें, और यदि उसका अर्थ की परिक्रमा करने में उसको 24 घंटे लगे, हमारे दिन के बराबर का समय लगे, तो वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर का जो ये सर्कल दिखाया है, ये कहता है कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। हमारा एप्पल इसी में था,
और बहुत सारे GSAT भी इसी में थे। आज भी कई सैटेलाइट इंडिया के इस ऑर्बिट में हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए और हमारी मेट्रोलॉजिकल अध्ययन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए निरंतर काम में आते हैं। फिर दूसरा ऑर्बिट होता है जिसको मीडियम अर्थ ऑर्बिटिंग का नाम दिया जाता है, जो ये लाल और हल्का लाल और ब्लू रंग की जो सर्कल है उनमें दिखाया गया है। इनके जो ऑर्बिट का समय है वो करीब 10-11 घंटे से लेकर के 14-15 घंटे तक का होता है। और सभी जो मीडियम रेंज वाले सैटेलाइट है, हमारा जो नाविक का या गगन वो इसी में घूमता है। सॉरी, स्लाइड पीछे लाते हैं। और GPS भी इसी में रहता है, और भी बहुत सारी दुनिया के जो GPS तरह के सैटेलाइट हैं वो यहीं पर रहते हैं। फिर आता है जिसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जो पृथ्वी से करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, और उसका 300, 350, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। और वहाँ पे इसका जो एक पृथ्वी की परिक्रमा करने का समय 1-2 घंटे हो जाता है, 2 घंटे जैसा रहता है। और इसमें भी बहुत सारे सैटेलाइट, रिसर्च सैटेलाइट्स इसमें रहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का अध्ययन बहुत क्लोजली कर सकते हैं। और भारत के भी कई सारे सैटेलाइट इसमें हैं। एक और तरह के सैटेलाइट हैं जो लो अर्थ में भी माने जाते हैं और कुछ मीडियम में भी होते हैं, जो सन सिंक्रोनस, मतलब उनका जो ऑर्बिटिंग पीरियड इस तरह का रहता है कि जहाँ वो होते हैं सन की जो लोकल टाइम है, जो सोलर लोकल टाइम, वो समान रहता है। मतलब 10 बजे आएंगे तो उस हमारे यहाँ वो 10 बजे ही दिखाई पड़ेंगे रोज, और इस प्रकार से वो घूमते रहते हैं। तो उनको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट नाम दिया जाता है। तो भारत ने अब तक 300 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें करीब 1/3 सैटेलाइट हमारे अपने हैं, हमारे अपने रिसर्च के और हमारे अपने उपयोग के हैं। जैसे ओशन स्टडीज़ के लिए है, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए है, रिमोट सेंसिंग स्टडीज़ के लिए है, और मीटरोलॉजी के लिए है। बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया के अपने हैं जो अपने ही हाथ से छोड़े गए हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और करीब 2/3 सैटेलाइट दूसरे देशों के, क्योंकि भारत जो लॉन्च करता है और लॉन्च करने के लिए जो उनकी के लिए चार्ज करता है वो सबसे कम है। जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, उन सब के लॉन्च करने में जो पैसा लगता है, खर्चा आता है, वो बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना। इवन अमेरिका के बहुत सारे सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किए हैं। तो इस प्रकार से करीब 33 देशों के सैटेलाइट भारत लॉन्च कर चुका है। और भारत का जो ये इसरो का लॉन्चिंग प्रोग्राम है, इसमें एक और बड़ा रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया था कि जिसमें 104 सैटेलाइट एक ही साथ, एक ही लॉन्च व्हीकल जो श्रीहरिकोटा से भेजा गया था PSLV, उसमें रख करके सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट, उसमें कुछ अपने भी थे और कुछ बाहर के, ज़्यादातर बाहर के थे, और सब सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किए गए। तो आज सैटेलाइट की संख्या जो हमारे वातावरण में, हमारे ये लो अर्थ ऑर्बिटिंग, मीडियम अर्थ ऑर्बिटिंग और जो स्टेशनरी ऑर्बिटिंग में बहुत ज़्यादा हो गई। और बहुत सारे सैटेलाइट फेल भी हो चुके हैं, उनका अवधि पूरी है तो फेल हो जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर वहीं पर लॉस्ट हो जाते हैं, उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और वो स्पेस डेब्री के रूप में रहते हैं, जो अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को ये एक चिंता जगने, जैसे पॉल्यूशन की समस्या पृथ्वी पे है, इस तरह का स्पेस में भी वो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए भी बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स का को इवॉल्व किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ताकि वो स्पेस डेब्री समाप्त करी जा सके, रिड्यूस करी जा सके। तो इसके लिए संस्थाएं बन रही हैं, नियम बनने जा रहे हैं। हम लोगों ने भी, इनफैक्ट स्पेस एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ने भी एक वेबिनार जिसमें 5 लेक्चर हुए थे, 3 डिफरेंट वैज्ञानिकों के, वैसा
2019 में एक वेबिनार कराया था जिसमें स्पेस डेब्रिस पर बहुत विस्तृत तरह की चर्चा है। और ये चर्चा हमारा जो वेबसाइट है स्पेस एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का, उसकी वेबसाइट पे मिलती है भी, आज भी रखी हुई है। वो टॉक सब रिकॉर्ड हो जाती है और वहाँ रहती है। अब हम फिर से साराभाई के उपलब्धियों के विषय में थोड़ा और चर्चा करेंगे कि साराभाई ने अपने छोटे ही जीवन काल में, रिलेटिवली छोटे ही जीवन काल में बहुत सारी संस्थाओं को स्थापित किया, बनाया, बड़ा किया, जिनमें करीब 10 इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ लिस्ट आउट करी है। इसमें सबसे पहली तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, PRL ही है, जिसमें मैंने भी 45 साल काम किया। और बहुत ही ये एक अच्छी ऐसी एक स्पेशल तरह की लेबोरेटरी हमारे भारत की है जिस पे हम सब गर्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद का है, वो भी हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना भी उन्होंने। कम्युनिटी साइंस सेंटर, जिसका अभी नाम विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर कर दिया गया है, वो भी साराभाई ने वो साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए, इनफैक्ट उनकी ये रुचि बहुत थी कि बच्चे साइंस बचपन से ही सीखें और हाथ से करके सीखें। मैं भी ये लेक्चर के अंत में एक दो उसी से प्रेरणा लेकर के मैंने भी एक दो एक्सपेरिमेंट बनाए, जो मैं ज़्यादातर जगह जा कर के खुद उन बच्चों से कराता हूँ। और आज के उसमें मैंने उनको एक आपको प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है, शायद आप उसका वो लगभग उतना ही आनंद ले पाएंगे। इसी प्रकार से साराभाई और उनकी वाइफ मृणालिनी साराभाई, जो एक बहुत प्रसिद्ध कल्चरल उसकी ज्ञाता थी, इन्होंने दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी स्थापना की थी, जो आज भी बहुत बड़ा एक केंद्र है जहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के अध्ययन भी होते हैं, लोगों को सिखाया भी जाता है, करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस साइंस सेंटर, तो ये भी विक्रम साराभाई के नाम पे, जो सबसे पहले तुम्बा में त्रिवेंद्रम में जो इस रॉकेट लॉन्चिंग की साइट के लगभग पास में ही या थोड़ी दूर पे ये बनाया गया। तो ये आज इसरो का सबसे बड़ा सेंटर यही है, जिसमें ज़्यादा ये लॉन्च व्हीकल्स का पे जो काम है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे किया जाता है। और अहमदाबाद में PRL के आसपास और कुछ LD इंजीनियरिंग कॉलेज और कई कॉलेजेस में, और ये जो इसको एक टेकरा है, उस टेकरा पे, जोधपुर टेकरा जिसको बोलते हैं, उस जोधपुर नहीं, ये सैटेलाइट वाला नहीं, सैटेलाइट टेकरा है ना यहाँ, हाँ नहीं, इधर हाईवे के हैं, अच्छा, तो उस पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस की डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए 6 संस्थाएं उन्होंने बनाई थी, जिनको वो ही गाइड करते थे उस समय पे जब तक वो रहे। और उनके बाद इन सब को मिला करके एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बना दिया। वो भी इसरो की एक सबसे बड़े यूनिट्स में से एक है। और इसमें स्पेस की एप्लीकेशंस का काम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने के पेलोड बनाने का काम, और रिमोट सेंसिंग के पेलोड बनाने का काम, मेट्रोलॉजी के पेलोड बनाने का काम, इनफैक्ट नाविक जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है वो भी वहीं से वहाँ पर डेवलप हुए। और जो उसका पेलोड जो सैटेलाइट में गया उसका निर्माण भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ही बहुत सारे वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस ने किया। और ये इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो प्रोफेसर यशपाल हुए, और उसके बाद बहुत सारे कई बड़े महान डायरेक्टर्स इस संस्था के बने और बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। ये नीचे के जो 4 संस्थाएं, फास्ट ब्रीडर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके अभी स्थापना साराभाई ने की थी। बट ये इनके विषय में मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता, बट ये बड़े महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं साराभाई ने
बनाई थी। अब मैं थोड़ी चर्चा हमारे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के विषय में करूँगा, जिसकी स्थापना साराभाई ने की थी, और स्थापना ही नहीं की थी, ये शायद उनको सबसे प्रिय संस्था भी थी। और उस समय पर तो जो ये नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट दिखा, इसका जो आगे वाला भाग दिखता है केवल ये था। पीछे वाला भाग बनना की शायद 4 मंजिल बन गई थी, ये आज 8 मंजिला है, तो वो सब बाद में उनके जाने के बाद बनी। और इसमें इसके और 3 कैंपस बन गए, तो ये 4 कैंपस वाली संस्था बन गई। जैसा दूसरा कैंपस, इसकी शुरुआत माउंट आबू जो टाउन है हिल के ऊपर, उसमें एक छोटी लेबोरेटरी के रूप में साराभाई के समय पर शुरू हो गई थी। बट उनके पश्चात जब प्रोफेसर देवेंद्र लाल PRL के डायरेक्टर बने, तो उन्होंने गुरु शिखर पे एक बड़ी वेधशाला बनाने का शुरुआत करी, जिस पे 1.2 मीटर का ऑप्टिकल एंड IR टेलीस्कोप आज भी काम करता है, जो आप देख रहे हैं। और इसी के साथ में वहाँ पे एक ऑप्टिकल एरोनॉमी लेबोरेटरी भी है, जो लेजर के द्वारा एटमॉस्फेयर का अध्ययन करती है। तीसरा संस्थान बिल्कुल उनके बाद में बना, बट इसमें भी उनकी प्रेरणा तो अवश्य ही रही होगी, और वो है उदयपुर में, जिसको उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। एक प्रोफेसर अरविंद भटनागर और उनके कई सहयोगी, जैसे प्रोफेसर राजमल जैन, प्रोफेसर अशोक अम्बस्ता और भी बहुत सारे मेरे साथियों ने इसमें काम किया। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये एक विशेष जगह पे है। ये फतेह सागर करके एक लेक है, उस पर एक छोटा आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर इसके चारों तरफ पानी है। तो उससे क्या है कि इससे सन की जो पिक्चर इमेज लेते हैं वो बहुत बढ़िया आती है। ये सबसे बढ़िया साइट मानी जाती है विश्व की सोलर ऑब्जर्वेशंस के लिए। और इसके 3 तंत्र वहाँ पे आज चल रहे हैं, और एक ग्लोबल ऑसिलेशन नेटवर्क ग्रुप है, जिसमें 6 एक से टेलीस्कोप बनाए गए हैं, जो 6 जगहों पे हैं। उनमें से एक टेलीस्कोप उदयपुर में ये वेधशाला चलाती है, और ऐसे और 5 विश्व के दूसरी जगह पे हैं, जिससे सन को 24 घंटे देखा जा सकता है। वो प्रोग्राम है, और उससे सन सूर्य के अंदर की अध्ययन किया जाता है, जिसको हीलियोसेस्मोलॉजी कहते हैं। और जो चौथा सेंटर PRL का है वो थलतेज में है। थलतेज गांव था, अभी तो वो भी अहमदाबाद में इंक्लूड कर लिया गया है, पहले ये गांव था। और यहाँ पे एक रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना सबसे पहले हुई थी, जो 103 मेगाहर्ट्ज पे काम करता था। और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उस टेलीस्कोप पे काम किया, और कई लोगों ने उस पर PhD करी, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी उससे आए। बहुत लोग उसको देखने आते थे, और देखने में एक ही उनको थोड़ा, जब टेलीस्कोप का नाम हो सोचते थे तो वो सोचते थे कि हम इससे आँख से देख पाएँ, बट इसमें जो भी चीज़ें दिखती थी वो चार्ट पे दिखती थी। जैसा एक चार्ट मैंने दिखाया था सिंचुलेशन का, उसी तरह का चार्ट पे इसकी ऑब्जर्वेशन होती थी। आज तो वो सब चीज़ें खैर वहाँ भी कंप्यूटर पर होती है, यू कैन सी इट ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन, वैसा ही जैसा ऑलमोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप में दिखाई पड़ता है, बट वो टेलीस्कोप अभी नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का एक बड़ा प्रोग्राम अभी चल रहा है। और जो गुरु शिखर की जो ऑब्जर्वेटरी है, जो ऑप्टिकल एंड IR ऑब्जर्वेटरी है, उसके जो रिसर्चर हैं, उनका जो ग्राउंड बेस्ड काम जो करते हैं वो थलतेज में होता है। तो एस्ट्रोनॉमी का बड़ा डिवीजन यहाँ पे है। PRL एटमॉस्फेरिक साइंस पे काम करता है, एस्ट्रोनॉमी में काम करता है, सोलर फिजिक्स में काम करता है, स्पेस वेदर पे काम करता है, जियो साइंसिस पे काम करता है, प्लानिटरी साइंस पे काम करता है, और बहुत सारा थ्योरेटिकल फिजिक्स का काम भी PRL में किया जाता है। इस सारे काम की चर्चा यदि मैं ब्रीफली भी करूं तो कई घंटों का समय लगेगा, तो मैं वो ना करके थोड़ी सी मेरे अपने काम की चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ। और वो ये है, यहाँ पे आपको 2 चित्र दिख रहे हैं जो सूरज के हैं। ये जैसा ये आज का चित्र है, और ये 4 दिन बाद का चित्र है। तो इन चित्रों में आप यदि देखेंगे तो कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं सनस्पॉट। और इनमें से किसी भी धब्बे की पोजीशन यदि आप देखें तो पहले से 4थे दिन का जो
चित्र है उसमें ये धब्बे थोड़े खिसक गए हैं और सबकी खिसकाव एक ही दिशा में है। तो वो बताता है कि हमारा सूर्य स्थिर नहीं है, हमारा सूर्य भी घूमता है। और इस घूमने पे हम लोगों ने बहुत सारे अध्ययन पीआरएल में किए, जिसको सारे की चर्चा करना तो संभव नहीं है, पर मैं एक जो उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी एक सोलर इमेज हम ले लें, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट की इमेज आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको हम अलग अलग भागों पे हर 10 डिग्री पे इसमें लाइन खींच दें और ये खींच करके जहाँ जहाँ ये लाइन है वहाँ की इंटेंसिटी का एवरेज निकाल लें और उस इंटेंसिटी को हम फिर एनालिसिस करके हम ये निकाल सकते हैं कि सूर्य कैसे घूम रहा है। और नॉट ओनली सूर्य एज ए होल घूम रहा है बल्कि उसमें एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में परिवर्तन आता है जिसको कहते हैं डिफरेंशियल रोटेशन। तो वो सब का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। तो वो हम लोगों ने किया, जिसका मैं एक चित्र बेसिक कारण जो विधि है वो यहाँ दिखाई गई है कि कोई भी एक इंटेंसिटी लेकर के वो ऐसे फ्लक्चुएट करती है। और इसमें भी आप देखते हैं कि ये रोटेशन का जो मॉड्यूलेशन है वो इंटेंसिटी में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं फ्लक्स मॉड्यूलेशन मेथड। पर यदि हम इसकी एक ऑटो कोरिलेशन नाम की एनालिसिस होती है, जो इसका ये सूत्र भी यहाँ दिया गया है, वो कर दें तो इससे जो ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस सिग्नल का बनेगा वो इस तरह का बड़ा पीरियोडिक वेरी करेगा। और ये जो रोटेशन पीरियड आप देख रहे हैं ये सन के रोटेशन पीरियड को बताता है। ये ऊपर वाला 30 डिग्री नॉर्थ का है और ये नीचे वाला 30 डिग्री साउथ का है। सूर्य का ही है पर एक 30 डिग्री ऊपर वाला और एक 30 डिग्री नीचे वाले भाग का है। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, दोनों के ऑटो कोरिलेशन में भी अंतर है और जब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें भी थोड़ा अंतर आता है, जिसको हम डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं। और इसके अध्ययन करके इस प्रकार के चित्र बन जाते हैं जिसमें जो कलर से दिखाए गए रोटेशन पीरियड है, रेड जो लाल जो रंग है वो सबसे ज़्यादा रोटेशन पीरियड बताता है, फिर पीला कम है, ग्रीन और कम है और ब्लू कम है और वायलेट जो है वो सबसे कम रोटेशन है। और इस चित्र में देखेंगे तो सूर्य ये लैटिट्यूड है, सूर्य के नीचे जो एक्स एक्सिस पे दिखाए गए हैं -80 to +80, और ये ईयर्स है 92 to 1996। ये सोलर साइकिल के का जो डिक्रीजिंग फेज साइकिल 22 का उसका चित्र है। और उसमें देखें यदि एवरेज को देखें वो इस लाइन से दिखाया गया है कि ये नॉर्थ वाला जो भाग है उसमें रोटेशन पीरियड कम दर से बढ़ता है और साउथ वाले साइड पे रोटेशन पीरियड ज़्यादा दर से बढ़ता है। तो इसमें सन के रोटेशन में डिफरेंशियल रोटेशन भी है और उस डिफरेंशियल रोटेशन में एसिमेट्री है। दोनों उसका जो दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग एक तरह से नहीं घूमते हैं, वो भी अलग अलग घूमते हैं। तो इसका ये अध्ययन सबसे पहली बार हमारे ग्रुप में ही नहीं किया था यहीं से, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये डिक्रीजिंग साइकिल सोलर साइकिल 22 का है। अब ये इंक्रीजिंग सोलर साइकिल 23 का चित्र देखेंगे तो इसमें ये लगभग सिमेट्रिक हो जाता है कि दोनों तरफ वो समान बढ़ता है। और यदि हम और आगे वाला देखें सोलर साइकिल 23 के डिक्रीजिंग फेज का, तो ये विधि बदल जाती है कि उत्तर वाला में टाइम ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है, दक्षिण वाले में कम लगता है। तो वो जो डिफरेंशियलिटी की जो एसिमेट्री थी उसका रिवर्सल हो गया। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं जिनका अध्ययन आज भी चल रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये काम हुआ। इनफैक्ट इसी विधि को यूज़ करके आज ये केपलर मिशन से जो एक्स्ट्रा सोलर सन जैसे सिस्टम ढूंढने का प्रयास कर रहा है और या अर्थ जैसे एक्सोप्लैनेट जिनको कहते हैं कि कहीं पृथ्वी जैसी कोई दूसरी भी पृथ्वी है जिस पर लाइफ की संभावना हो सकती है, उसके अध्ययन में ये फ्लक्स मॉड्यूलेशन मेथड बहुत ही उपयोगी है, बहुत काम में लिया जाता है। अब मैं जो वो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था वो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जिसको आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े तंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एक सफ़ेद कागज़ चाहिए और एक काला, जैसा ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे
राइट साइड पे दिखाया है, एक ब्लैक पेपर और एक वाइट पेपर, और एक या दो ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट जो विंडो में लगती है, ऐसे वाली कोई प्लेट, कोई भी कांच का टुकड़ा प्लेन। तो ये मेरी पत्नी है, मैंने उन्हीं को बोला कि आप ये प्रयोग करके दिखाओ, और मैं चित्र लेकर के बच्चों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो इनके हाथ में ये सबसे जो लेफ्ट वाली पिक्चर है उसमें हाथ में वो पेपर है और दूसरे हाथ में वो ग्लास प्लेट है। और इनको यदि पेपर को ग्लास प्लेट के नीचे रखें और फिर ये अपना उसमें फेस देखने का प्रयास करें, तो यदि सफ़ेद पेपर नीचे रख करके ग्लास प्लेट के देखते हैं तो फेस लगभग दिखाई नहीं पड़ता। तो वो बोलती है आई डोंट सी माई फेस हियर। अब हम वो सफ़ेद के बजाय काला पेपर ले लें और उसको ग्लास प्लेट के नीचे लगाएं और फिर उसको उसमें मुंह देखने का प्रयास करें, मतलब ग्लास प्लेट और उसके नीचे हमने काला पेपर लगा दिया, उसको यदि आप देखोगे तो उसमें आपको अपना फेस क्लियर, ये कोई एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकता है। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट कई हजारों पार्टिसिपेंट्स को कराया, बहुत जगहों पर, भारत में भी, भारत के विभिन्न स्थानों में भी, स्कूल कॉलेजों में भी कराया, एक दो यूनिवर्सिटी में भी कराया और विदेशों में भी बहुत जगह कराया। तो सब इस बात को कर तो पाते हैं, पर ऐसा होता क्यों है वो 1-2% ही लोग जानते हैं। तो अगले चित्र में मैं इनका बताऊंगा कि ये वास्तव में होता क्यों है। कि ये जो यहाँ ब्लैक लाइन दिख रही है सॉलिड, ये हमारा ग्लास प्लेट है, और इस पर जब भी कोई लाइट आएगी, एक लाइट रे इस पर आएगी, तो उसके दो भाग हो जाएंगे, एक भाग रिफ्लेक्ट होगा, एक भाग रिफ्रैक्ट होगा। और ग्लास प्लेट से ज़्यादातर करीब 10% रिफ्लेक्ट होता है, 90% अंदर चला जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए हम घरों में, कार में, हमारे बहुत सारे बसों में, सब जगह जो ग्लास प्लेट लगाते हैं उसका यही कारण है, ताकि बाहर की चीज़ें हम भी देख सकें और बाहर वाले हमें भी देख सकें, प्रकाश भी आ सके और बाहर जा भी सके। तो वो चूँकि 90% होता है इसलिए उसमें देखा जा सकता है। तो ये बात है। अब हम इसके नीचे यदि काला पेपर लगा दें ग्लास प्लेट के नीचे, तो जो ये 90% अंदर जा रहा है, पीछे की तरफ को जा रहा है, ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये जो 10% रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट हमारी तरफ वापस आएगी, उसमें हमारा फेस क्लियरली दिखाई पड़ता है। ब्लैक पेपर के बजाय यदि हम वहाँ पे व्हाइट पेपर लगा दें तो व्हाइट पेपर सारी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस 90% का भी मेजर भाग वो रिफ्लेक्ट कर देगा। और रिफ्लेक्ट करने में, पर चूंकि पेपर की जो सरफेस है वो कांच की तरह से स्मूथ नहीं है, तो उसका स्पेकुलर, जैसे कांच में तो एक डायरेक्शन से आया, दूसरी डायरेक्शन में सिग्नल चल जाएगा और इसके दोनों तरफ के एंगल बराबर होंगे। बट जो हमारा पेपर है वो स्मूथ सरफेस नहीं है, वो रफ है, तो वो कोई लाइट के भाग को इधर को करेगा, कोई दूसरे तरफ को, तो उसको कहते हैं स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन करेगा। तो स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन होने के कारण जो ये 10% अच्छा था, जो जिसमें हमें ब्लैक करने से 10% से हमारा फेस हमें मिरर की तरह से दिखाई पड़ने लगा था, ये 10% को भी खराब कर देता है। इसलिए वाइट पेपर यदि ग्लास के नीचे लगा दें तो हम उसमें अपना फेस नहीं देख सकते। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, आप लोग सब अपने घरों पे, अपने स्कूल कॉलेज में कहीं भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये करने में और समझने में। दूसरा प्रयोग तो उससे भी सरल है, जिसको आप इवन यहाँ अभी भी कर सकते हैं कि अपना एक हाथ उठाओ और उसको कान के पास लेके जाओ। कान के पास लेके जाएंगे तो कान में थोड़ी आवाज़ आने लगती है, दूसरे को लेके जाओ कान के पास में, दोनों लगाओ तो दोनों कान में आवाज़ लानी। और यही नहीं, आप कोई गिलास, कटोरी, चम्मच, कप, कोई भी चीज़ यदि कान के पास लाओगे तो एक आवाज़ आती है। ये सबको आती है, जो बहरे नहीं है सबको आ जाएगी। तो पर ये आवाज़ आती कहाँ से है? ये भी प्रयोग मैंने बहुत जगह पे कराया और इसका भी उत्तर बहुत कम लोग दे पाए हैं। मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि क्या है कि हमारे वायुमंडल, हमारे वातावरण में सब प्रकार की तरंगे स्थापित हैं, हमेशा ही रहती हैं। कोई स्कूटर चला रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ये सब चीज़ें साउंड वेव पैदा होती हैं और ये वेव हमारे वातावरण में हमेशा हर जगह है, खूब घूम रही हैं। और कोई भी, जैसा हमारा हाथ कान के पास लाए तो यहाँ पे एक चैनल बन जाता है जिसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है।
तो जब हम कान को, इस हाथ को कान के पास लाते हैं, तो वो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करता है, अनुनाद करता है, तो वो हमें सुनाई पड़ती है, बाकी कुछ नहीं सुनता, इसलिए आवाज आनी है। जब ग्लास लाएंगे, अलग अलग तरह के ग्लास लाओगे, तो उसमें सब में ये आवाज आएगी, पर हर एक में अलग अलग आएगी, तो वो उनकी नेचुरल जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको लगेगा। और यदि हम यही क्रिया किसी ऐसी जगह पर जाके करें जहां बिल्कुल शांत वातावरण है, वैक्यूम कर दिया जाए, किसी प्रकार की कोई आवाज ना आए, तो फिर ये आवाज ना में हाथ लगाने से आएगी, ना कोई ऑब्जेक्ट लगाने से आएगी। आई थिंक लास्ट, अच्छा हाँ, एक और है प्रयोग, एक और प्रयोग है जो हम लोग रेल की यात्रा में देखते हैं, और बहुत लोगों को ये विचित्र लगता है कि जैसा हम रेल में जाते हैं, मानो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ चलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी राइट साइड को देखें या लेफ्ट साइड को देखें, तो हमें लगता है सब चीज़ें पीछे को जा रही हैं, लेफ्ट वाली भी, राइट वाली भी। यदि और ध्यान से देखें तो जो पास की चीज़ें वो तेज जा रही हैं, दूर की कम जा रही हैं, फिर और कम जा रही। बहुत दूर पे यदि कोई सूरज, चांद, तारा या हिल, कोई बड़ा पेड़, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी दूर की चीज़ें दिखेंगी, तो वो उधर वापस ना जाने के बाद वो हमारी तरफ को हमारे साथ साथ दौड़ती है, हमारे साथ साथ चलती है। तो और वो दोनों तरफ से, तो हमें वास्तव में ये फील होता है कि एक तरफ की पृथ्वी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ की पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। वास्तव में पृथ्वी घूमती नहीं, चलती तो हमारी ट्रेन है। तो अब इसको मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि मानो कि हम ये रेलवे ट्रैक दिखाया है, और इस ट्रैक पे एक हम डब्बा मैंने इसमें नहीं दिखाया, बट हम यहाँ पे ए पॉइंट पे है और बी पे जा रहे हैं, और हमने ये 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे, 1, 2 और 3, इनको हम देख रहे हैं। तो जब ए से बी पे जाते हुए मैं पहले ऑब्जेक्ट को देखूंगा, तो मुझे मेरी गर्दन करीब 150 डिग्री घुमानी पड़ेगी, और यदि मैं 2 को देखूंगा तो मुझे मेरी गर्दन करीब 100 डिग्री घुमानी पड़ेगी, और यदि मैं 3 को देखने का प्रयास करूंगा तो 60 डिग्री, और यही ऑब्जेक्ट यदि और दूर हो तो और छोटा एंगल बनेगा, और छोटा एंगल बनेगा। और ये एंगल बनने के कारण ही जैसे जो सबसे पास में है वो सबसे तेज पीछे को जाता दिखता है, जो थोड़ा दूर है वो थोड़ा कम, क्योंकि हमें उसको देखने में कम अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। और बहुत दूर का जो बिल्कुल ही दूर है, जहाँ का कोण हम लोग नाप ही नहीं सकते, हमारी आभास ही नहीं कर सकते, तो वो सब ऑब्जेक्ट हमें ऐसे दिखते हैं कि वो वास्तव में हमें स्टेशनरी दिखने चाहिए, स्थिर दिखने चाहिए, पर चूंकि हम तो चल रहे हैं, इसलिए वो जिस दिशा में हमारी ट्रेन चलेगी, यदि हम उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं तो वो भी दक्षिण की तरफ चलेंगे, यदि दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं तो उत्तर की तरफ चलेंगे, पश्चिम जा रहे हैं, किसी भी दिशा में चलेंगे उसी दिशा में। और यदि ट्रेन की को रिवर्स कर दिया है तो तुरंत वो उल्टे भी हो जाएंगे, पर होता उनमें कुछ नहीं है, केवल चूंकि वो दूर है और उनसे जो हम चलते हुए बहुत देर तक उनको देख सकते हैं, तो वो लगभग स्थिर दिखते हैं। पर चूंकि हमारी ट्रेन चल रही है तो बाकी चलती की तुलना में वो हमारी ट्रेन की दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। आई थिंक यही शायद मेरी लास्ट स्लाइड थी। अच्छा, ये बंद करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने जो इसमें मटेरियल यूज़ किया है टॉक में, वो काफ़ी इसरो की PRL की वेबसाइट से लिया है। और वास्तव में PRL ने इनफैक्ट पिछले साल एक बहुत अच्छी पुस्तक साराभाई के ऊपर बनाई है, जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका एड्रेस सबसे नीचे लिया गया है, जिसको कहते हैं विक्रम पत्रिका, हिंदी में है ये। और इसमें बहुत अच्छा विवरण, बहुत सारे चित्र साराभाई के डिफरेंट लोगों के साथ में है, और बहुत ज्ञान वृद्धि की है। मैंने उसमें से भी कई चित्र अपने इसमें यूज़ किए हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे ये 8 पुस्तकों के नाम लिखे हैं, जिनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया था। और ये सब पुस्तकें, ये ऊपर वाला जो वेबसाइट दिया गया है उस पर सब ये अवेलेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इनको ट्रांसलेट करते हुए मैं भी, हालांकि उस टाइम जब मैंने ट्रांसलेट की थी उस समय पर मैंने करीब 40 साल PRL में काम पूरा कर लिया था, और काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया था।
फिर भी इन 8 छोटी छोटी कॉमिक बुक्स को ट्रांसलेशन करने में मैंने बहुत सारी नई चीज़ें तब सीखी और समझी। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी छोटी 12-12 पेज की 16 पेज की बुक है। और एरोरा क्या होता है, कॉस्मिक रे क्या होती है, जियोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वो सारे। और इनफैक्ट ये ओरिजिनली बनी थी जापानीज लैंग्वेज में, फिर नासा और जापान के साइंटिस्ट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और फिर उन्होंने कहा कि जो भी देश इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहे तो कर सकते। मैंने उनको लिखा कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तो वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गई। और इस प्रकार से आज तो दुनिया के 20 देशों से ये लैंग्वेजेज में ये ट्रांसलेट हो चुकी है, और सब इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस पे जापानीज भी है, इंग्लिश भी है, रशियन भी है, पोर्चुगी भी है, और हिंदी भी उसी में है। और इनको फ्रीली देखा जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है, यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और ये मेरे 2 ईमेल एड्रेसेस नीचे लिखे हुए हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो इसके द्वारा मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि कोई लाइव अभी पूछना चाहे तो मैं उनका उत्तर देने के लिए भी अवेलेबल हूँ। धन्यवाद। क्या ये शेयरिंग बंद कर दूँ?